Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Start with the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Beta, here is your next English lecture of remaining poem 6.3 unit, and the poem is Once Upon a Time by Gabriel Okada. We are left with this only poem, and today we'll inshallah cover it up. Hopefully, you will be listening to your lectures intently, and you'll be continuously responding, and it will be beneficial for you as from that of your paper point of view. Keep preparing all these things time to time so that it may not be a burden to you at the end of the year, at the end of the term. So once upon a time by Gabriel Okada, beta unit 6.3 है, 6 यूनिट की ये पोएम है. Before going to the poem, I would like to just talk about something about the poet Gabriel Okada. He was born in 1921 and died in 2019. No, it's something wrong. He was born in 1921. Okay, I got detracked. In 1921. And he was considered as one of the best American poets, ठीक है, among the American poets. When we go through this, we come to know that Gabriel Okada, he was considered one of the first modern African poets. He was basically from Africa. More specifically from Nigeria. Okay, he was born in Nigeria. His works first appeared in the magazine Black Orpheus from 1957, and this poem, Once Upon a Time, was included in his book The Fisherman's Invocation, published in 1978. He was also awarded a Commonwealth Poetry Prize in 1979, and Okada shows a concern regarding what happens when the ancient culture of the Africa is faced with the onslaught of the Western culture. He talks about when they got freedom from the Britain, Nigeria got freedom from the Britain. He talks about the difference that he has noticed when the people they start behaving differently. Okay, and he tried to highlight it through this poem. So let's come to the poem, beta. What he says in the poem. We'll first have a reading of it, then we'll just explain stanza by stanza all the things. Once Upon a Time by Gabriel Okada. What he says: Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their eyes block cold eyes, search behind my shadow. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hand search my empty pockets. Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home, once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses: home face, office face, street face, host face, with all their confirming smiles like a fixed portrait smile. I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. But believe me, son, I want to be what I used to be. When I was like you, I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. So show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. But this was the reading. Keep in your mind the setting of the poem. In this poem, he has portrayed that two characters, okay? And in this, he wants to convey that a father is just advising his son, okay?
and what he's saying, he's just narrating him the difference of the past and the present times, how people used to behave in the past, what difference has arrived, what difference has the people got in their characteristics, in their culture, in their day-to-day pragmatic life, and in their personalities when they used to be under the subjugation of Britain and when they have got freedom from them. Okay, and he actually criticizes, he actually ironically depicts the poem in the context of freedom. Okay, and he says that what happened, how people they have changed, how values have changed, how the behavior of the people have changed time to time. So first we'll go stanza wise, then we'll summarize the poem. In the first stanza, once upon a time, my son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their eyes block cold eyes search behind my shadow. So in this first stanza, it suggests this poem is going to be based on story, a kind of story or a fairy tale. Okay, यानी ये फर्स्ट stanza से हमें पता चलता है कि ये जो पोएम है इसमें कोई स्टोरी बताएगा, क्योंकि ही टॉक्स अबाउट सम कैरेक्टर्स, father and son. Okay, then in the first stanza the speaker is addressing his son. So this could be a father beginning to explain how things used to be and how people they used to laugh with their hearts and eyes back in the past. अपने बेटे को बेटा पास्ट के बारे में बताते कि लोग किस तरह हंसा करते थे, खिलखिलाया करते थे, उनकी मुस्कुराहटें हकीकी हुआ करती थी. अब ये जो फेकनेस विच दे हैव गॉट अपॉन देयर पर्सनैलिटीज़, ऑन देयर फेसेस, ही जस्ट टॉक्स अबाउट दैट. अब लोगों की जो फेकनेस है उस पर बात करता है. एंड ही सेज he has given a contrast between past and present. माजी और हाल का एक कंट्रास्ट देता है बेटा. और क्या कहता क्या है, nowadays laughter is more of a shadow of teeth and the eyes are cold and looking for something other than the real person. कहता है कि अब तो लोगों की जो खिलखिलाहट है वो माँ सिवाय दांतों को शो करने की कुछ भी नहीं है. यानी हकीकी तौर पे अब लोग मुस्कुराते नहीं हैं. अब लोगों के चेहरों में वो खुशियाँ नहीं दिखती, लोगों का हकीकी चेहरा, हकीकी रूप नहीं दिखता, बल्कि दे आर फेक. दे हैव टेकन, दे आर इंटेंडेड टू डू सो बिकॉज ऑफ देयर गेन, बिकॉज ऑफ देयर पर्पस. अप टू यू. ओके, सो क्या कहता है, अब फर्स्ट स्टैंजा में दोनों पास्ट एंड प्रेजेंट को फर्स्ट स्टैंजा में बेटा कंपेयर करेगा. अब फर्स्ट स्टैंजा में और हमें क्या बताता है, कहता है सो ऑलरेडी द प्रेजेंट इज बीइंग जज्ड बाय द पास्ट. प्रेजेंट जो है वो पास्ट के तनाज़ुर में, पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में जज किया जा रहे हैं. एंड फ्रॉम व्हाट वी कैन गैदर फ्रॉम दीज फर्स्ट 6 लाइन्स इज द स्पीकर प्रेफर्स द एटीट्यूड ऑफ द पीपल फ्रॉम द पास्ट. इन पहली 6 लाइन से हम क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या अखज़ कर सकते हैं, क्या मीनिंग ले सकते हैं कि इनमें राइटर हमें पास्ट के एटीट्यूड जो लोगों के थे उनके बारे में बताता है. एंड व्हाट ही सेज, देयर इज अ फीलिंग दैट नेगेटिव चेंज इज हियर. और हमें एक उसकी हम क्या कह सकते हैं, फीलिंग्स मिलती हैं. किस में, वो नॉस्टैल्जिक है. ही थिंक्स अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में सोचता है, पास्ट के बारे में बात करता है. ओके, let's come to the second stanza. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, with their left hands search my empty pockets. अब बेटा सेकंड स्टेंजा में अपने बेटे को फिर अपने बेटे को एड्रेस करता है. और कहता क्या है, कहता है कि in this he talks about the attitudes, the values, the way people used to meet one another. He discusses that thing in that very way that he says the art of shaking hands has also changed. अब कहते हैं लोगों का हाथ मिलाने का जो तरीका है वो भी अब तब्दील हो चुका है. In the past, he is of the view that in the past the greeting was genuine. ठीक है, genuine होती थी greetings. लोग हाल अहवाल सलाम तो बड़े तहे दिल से पूछा करते थे. A person welcomed for who they were. लोगों को उनकी हकीकत से आशना करके पूछा जाता था. यानी जिसकी जितनी अहमियत थी उसे इतनी अहमियत, ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू कर्टेसी दी जाती थी. ठीक है, बट नाउ डेज पीपल शेक हैंड्स विद वन आई ऑन द स्टेटस, योर फाइनेंशियल स्टेटस. लेकिन अब तो कहता है लोग आपसे मिलते भी हैं किसके लिए, आपके सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस को देख के, उसके बरक्स आपसे मिलते हैं. People are no longer genuinely warm towards others.
अब लोगों की वो फीलिंग्स नहीं है दूसरों के लिए, अब लोगों के दूसरों के लिए वो जज्बात नहीं रहे। पीपल आर ऑन द मेक वांटिंग टू गेट समथिंग फ्रॉम यू। अब लोग क्या चाहते हैं, लोग आपसे तब मिलते हैं कि उनको आपसे कुछ फ़ायदा हो, उनको आपसे क्या मिल सकता है या उनको आपसे क्या हासिल हो सकता है। ठीक है, इसलिए बेटा वो कहता है नाउ दे शेक हैंड विदाउट हर्ट्स वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स। यानी सेकंड स्टैंजा में हम बताते हैं किस तरह लोग अब हाथ मिलाते हैं, यानी आपसे मिलते भी लोग हैं तो गर्ज की वजह से, अपने मकसद की वजह से, अपने गेन्स की वजह से। सो लेट्स कम टू द थर्ड स्टैंजा। Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home, once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. अब बेटा थर्ड स्टेंजा में क्या कहता है कि people invite you round to their homes, making out as if you are important to them. ठीक है, यानी लोग आपको हर वक्त कहते हैं कि आप मेरे घर चक्कर लगाइए, आपको दावत देते हैं आने की, अपने घर आने की, मिलने की, बट if you don't measure up socially or your status isn't quite right, you're not invited again. अब बेटा बड़ी खूबसूरत बात करता है, इसमें हमारी सोसाइटी को हाईलाइट करके इसकी जो डाउन साइड्स हैं, जो लोगों के दिलों में ग्रजेस हैं, जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच है लोगों की, उसके बारे में बात करते हुए हमें बताता है, कहता है कि लोग आपको राउंड द क्लॉक आपको इनवाइट करते हैं अपने घर पे, लेकिन अगर आपका सोशल स्टेटस अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन एंड डिज़ायर्स नहीं है, सो यू विल नॉट बी इन्वाइटेड अगेन। तो आप देखते हैं कि अब लोगों का कहना क्या है, वर्ड्स क्या है कि आप आइए, कहते हैं जब मैं अब जाता हूँ, अब डिफरेंस बता रहा है पास्ट और प्रेजेंट का। कहता क्या है, कहते हैं लोग मुझे कहते हैं कि हमारे घर में आइएगा, लोगों की बड़ी वेलकमिंग नेचर थी पास्ट में, लेकिन अब क्या है, अब तो लोगों का बिहेवियर ही चेंज है प्रेजेंट का। वो आपको एक दफ़ा आपको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, दूसरी दफ़ा वो देयर इज़ नो थेराइज, फिर तीसरी दफ़ा वो आपको वेलकम नहीं करते। आपका अगर सोशल स्टेटस जो है वो आपका उनके अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन एंड डिज़ायर्स नहीं है, तो ठीक है। अब व्हाट दिस सजेस्ट, दिस सजेस्ट दैट दिस एलियनेशन कंटिन्यूज, फिर लोगों की तन्हाइयाँ बढ़ती जाती हैं, ठीक है। एंड ही इज़ ऑफ द व्यू दैट पीपल नाउअडेज आर आर्टिफिशियल एंड फेक बिकॉज ऑफ द चेंज इन कल्चर। बेटा एक्चुअली ये जो पोएम थी किस पे लिखी गई है, नाइजेरियन, जब नाइजेरिया ने इट गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटेन, ही टॉक्स अबाउट द पास्ट मेमोरीज, द पोएट इज नॉस्टैल्जिक अबाउट द पास्ट बिहेवियर्स ऑफ द पीपल। पास्ट के जो मेमोरीज हैं, पास्ट के जो बिहेवियर्स हैं, पास्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लोगों की पर्सनैलिटीज़ में, उनके बारे में बात करते हैं। नॉस्टैल्जिक है, माजी को याद करता है, और क्या कहता है कि पहले तो आप लोगों के घर जब भी जितनी दफ़ा जाएं, लोग उनका नेचुरल बिहेवियर था, लेकिन अब तो फेक है। पीपल आर इंटेंडेड टू गेट समथिंग फ्रॉम यू। लोगों का माइंड होता है कि आपसे उनको क्या हासिल होता है। जब उनका मकसद निकल गया, दे नो मोर वेलकम यू एट देयर होम्स, दे नो मोर इनवाइट यू इफ यू हैवंट गॉट योर सोशल स्टेटस अकॉर्डिंग टू देम, they won't invite you at your homes. So it means that people have now turned to be materialistic. अब लोग materialistic हो चुके हैं, अब लोग मादा परस्त हो चुके हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए हर एक काम करते हैं। So let's come to the fourth stanza. What he says: so I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face, with all their confirming smiles like a fixed portrait. वाह, बहुत खूबसूरत बात करता है बेटा। इस स्टैंजा में हमें बताता है कि अब कहता है मैंने भी लोगों की तरह अंदाज सीख लिए हैं। किस चीज़ के? कहते हैं मैंने भी डिफरेंट फेसेस पहनना, डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के रूप धारना सीख लिए हैं, टू डिसीव अदर्स, दूसरों को धोखा देने के लिए। अच्छा, अब डिफरेंट फेसेस पहनने का मीनिंग क्या है? In the fourth stanza, he talks about in the previous three stanzas. First, he outlines the speaker's perception of changing culture and attitude and values in his country. पहले तीन स्टेंजा में लोगों की जो वैल्यूज़ चेंज होगी, लोगों की सोच, परसेप्शन, थिंकिंग चेंज हो गई, लोगों के बिहेवियर चेंज हो गई। पहले तीन स्टेंजा में बेटा हमें उसका एक
जिस्ट देता है दैट हाउ पीपल दे हैव गॉट चेंज टाइम टू टाइम, वक्तन फ़वक्तन लोग कैसे तब्दील हो चुके हैं। नाउ दिस फोर्थ स्टैंजा डिस्क्राइब्स हाउ द स्पीकर हिमसेल्फ हैड टू चेंज। अब इस फोर्थ स्टैंजा बताता है कि मैं किस तरह चेंज हुआ था, एंड लर्न इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद ऑल दीज कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ऑल दीज थिंग्स दैट एज द पीपल दे हैव चेंज सो एम आई। कहता है जिस तरह लोग तब्दील हुए हैं फिर मैं भी तब्दील हो गया इन सारी चीज़ों से कंप्लाई करने के लिए, इन सारी चीज़ों के बराबर आने के लिए, इनका सामना करने के लिए। सो ही सेज ही यूजेस द कंपैरिजन एक्चुअली बाय फेसेस, आई मीन ही यूजेस द कंपैरिजन, वो एक कंपैरिजन यूज करता है जिसमें वो कहते हैं फेसेस टू ड्रेसेस, यानी जिस तरह लोग ड्रेसेस चेंज करते हैं ना, अब कहता है प्रेजेंट और पास्ट को कंपेयर करके कहते हैं अब लोगों ने इस तरह अपने चेहरे बदलना शुरू हो गए हैं। लाइक ही गिव्स द एग्जांपल्स दैट होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, होस्ट फेस, ऑल दीज आर जस्ट कंपैरिजन्स। अब क्या कहता है फेसेस टू ड्रेसेस, बाय दिस he wanted to highlight the various personas he took on। personas में डिफरेंट किस्म के कहता है रूप जो लोग धारते हैं, कहते हैं मैंने भी ये सीख लिया है। all the while smiling, जबकि वो हर एक चीज़ में मुस्कुरा रहे होते हैं। कहते हैं अब मैंने भी सीख लिया है कि लोगों को डिसीव कैसे करना है। अगर कोई दोस्त मिलता है तो उसको किस तरीके से मिलना है, अगर कोई मेरे घर पे आता है मैं एज ए होस्ट हूँ तो फिर मैंने किस तरह मिलना है, अगर मैं दफ्तर जा रहा हूँ तो मेरे चेहरे के तासुरात क्या। कहते हैं आई हैव लर्न ऑल दीज थिंग्स by this society to comply with all these customs and traditions which have changed since we have got our freedom। okay, अब कंपेयर किसको करता है, कहता है प्रीवियसली तो लोग कैसे थे, नेचुरल फीलिंग्स देते थे, वो आपके साथ नेचुरली इंटरेक्ट करते थे, बिहेव करते थे, बट नाउ दे हैव चेंज, नाउ दे हैव गॉट द फेसेस टू इंटरेक्ट विद यू पीपल। ओके, अब कहते हैं लोगों ने दूसरों से इंटरेक्ट करने के लिए, उनकी बातचीत करने के लिए अब लोगों ने फेसेस चेंज कर लिए। अब लोगों ने फेसेस ड्रेसेस की तरह चेंज करना शुरू कर दिए। जब जहाँ पे होते हैं वैसे तासुरात वो अपने चेहरे पे सजा लेते हैं। द रिपीटेड यूज ऑफ फेस अफेक्ट्स टू वेरियस प्लेसेस एंड सिचुएशन इज हाईली विजुअल। बेटा कहते हैं ये जो मुतवातर लोगों के चेहरे तब्दील होते हैं और अफिक्स पोर्ट्रेट की तरह ये जो एक स्माइल सी है लोगों के चेहरों पे, ये विजुअल है लोगों के, ये बिल्कुल अयां है लोगों के चेहरों से कि लोग अब जहाँ पे जाते हैं बिल्कुल वहीं का रूप धार लेते हैं, उसी तरह के तासुरात चेहरे पे ले आते हैं। एंड इट्स क्वाइट क्लियर फ्रॉम आवर सोसाइटी एज वेल। हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिफ्थ स्टेंजा पे आते हैं बेटा। अब क्या कहते हैं, एंड आई हैव लर्न टू लाफ विद ओनली माई टीथ एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हर्ट। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय व्हेन आई मीन गुड रिडन्स, टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड, एंड टू से इट्स बिन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड। अब बेटा फिफ्थ स्टेंजा बहुत खूबसूरत बात करता है। कहता है मैंने ये भी सीख लिया कि किस तरह लोगों को मैंने टैकल करना है। हाउ आई हैव टू टैकल द पीपल as they have just gave the expression to the others, to one another। ठीक है, कहता है इस मटीरियलिस्टिक बिहेवियर में इंसान के मैंने भी सीख लिया है कि लोगों को मैंने किस तरह कहना है कि मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, जबकि मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहता था। जब मैं उनसे कहता हूँ गुड बाय, खुदा हाफिज़, जबकि मैं उनसे निजात, गुड रिडन्स चाहता हूँ, उनसे दूर हटना चाहता हूँ, उनसे निजात चाहता हूँ। और कहता है जब मैं ये चाहता हूँ कि ना ग्लैड टू मीट यू, जब मैं बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और कहता है मैंने ये भी लोगों को एक्सप्रेस करना सीख लिया है कि जब हम ये कहते हैं इट्स बिन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड, जब हम किसी से बोर हो रहे होते हैं फिर भी हम चेहरे के तासुरात, यानी वो सारे कंपैरिजन, अब फेसेस के कंपैरिजन बता रहा है। यानी मैं अगर किसी से तंग भी हो रहा हूँ तो मैंने ये कहना सीख लिया है कि आपसे मिलके मुझे खुशी हुई, आपसे बात करके मुझे खुशी हुई। कहते हैं ये सारी बातें कहना ये मैं सीख चुका हूँ अब। सो व्हाट ही फर्दर सेज, he also become adept at that heartless handshake and hollow toothy smile। अब कहता है आई एम यूज्ड टू इट, मैं इससे कहते हैं हमांग हो चुका हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें सीख लिया हैं। एंड आई नो हाउ टू डिसीव पीपल विद द फेयरवेल्स एंड वेलकम्स एंड फॉल्स पोलाइटनेस। अब कहता है मैंने ये सीख लिया है कि किस तरह मैंने लोगों को धोखा देना है, किस तरह से उनको वेलकम करना है, किस तरह उनको आई हैव टू बिड फेयरवेल, किस तरह मैंने उनको अलविदा कहना है, और किस तरह फॉल्स पोलाइटनेस अपने बिहेवियर में
रखनी है. Basically, actually he wanted to say that he has become an integral part of this new culture. He has also opted this culture. कहता है अब मैंने भी ये कल्चर जो है, ये जो रस्म व रिवाज है, इनको अपना लिया है. ठीक है. और कहता है इट्स बिन क्वाइट एन एजुकेशन फॉर हिम. कहते हैं ये भी मेरे लिए एक तालीम है, ये मैंने चीज़ें सीखी हैं कि किस तरह मैंने लोगों को टैकल करना है, किस तरह मैंने लोगों को धोखा देना है, किस तरह अपने चेहरे पे खुशियाँ सजानी है, उनको खुशामदीद कहते हुए, अलविदा कहते हुए, या किस तरह झूठ मूठ की पोलाइटनेस अपने चेहरे पे सजानी, अपने बिहेवियर में किस तरह से मैंने शाइस्तगी लानी है. सो इन द 6th stanza he says, but believe me son, I want to be what I used to be. When I was like you, I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. स्नैक्स बेयर फैंग्स कहते हैं सांप के वो दो सामने वाले दांत नहीं होते बेटा. कहते हैं मेरी मुस्कुराहट जब मैं अब आईने में अपने आप को देखता हूँ तो ऐसे ही नज़र आती है जिस तरह के सांप के दो ढसने वाले आगे क्या होते हैं, दांत होते हैं, उनको कहते हैं फैंग्स. ठीक है. सो बेटा इन द 6th stanza ही इज़ ऑफ द व्यू, वो हमें बताता है एक्चुअली अपने बेटे को क्या कहता है, यानी इस चीज़ को कंफर्म करते हुए वो बड़ा खुश है. और अब फिर अगेन नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स हमें मिलती हैं दैट ही वांट्स टू रीगेन फॉर्मर इनोसेंस द यंगर स्टिल होल्ड्स. कहता है वो पुरानी इनोसेंस, वो मासूमियत, वो सच्चाई, वो हकीकत, वो नेचुरल बिहेवियर वो रीगेन करना चाहता है. एंड ही वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस न्यू कल्चर एंड ऑल दिस म्यूटिंग थिंग्स. ही डजंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस न्यू कल्चर एंड म्यूटिंग थिंग्स. इन तमाम चीज़ों के बारे में, ये जो झूठी, ये जो म्यूटिंग, अनस्पोकन, अनएक्सप्रेस जो चीज़ें हैं, अनएक्सप्रेस आइडियाज़ हैं, इनका वो हिस्सा नहीं बनना चाहता. वो दोबारा से उसी नेचुरल वर्ल्ड में जाना चाहता है. कहते हैं माजी में जैसे लोग सच्चे थे, लोगों के बिहेवियर, तासुरात, एक्सप्रेशन सच्चे थे, जिस तरह लोग एक दूसरे को सच्चाई से ट्रीट करते थे, वो सारी चीज़ें रीलर्न करना चाहता है. एंड व्हाट ही सेज, दैट वर्ड म्यूटिंग मीन्स टू डेडन इन दिस कॉन्टेक्स्ट. म्यूटिंग का मतलब क्या है? टू डेड. ठीक है. ही वॉन्ट्स टू जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ही डोंट वॉन्ट टू लर्न ऑल दीज बिहेवियर्स, ऑल दीज एक्सप्रेशंस दैट पीपल नाउ हैव अडॉप्टेड फॉर द डिसेप्शन ऑफ द अदर पीपल्स. ओके. दूसरे लोगों को धोखा देने के लिए तमाम जो लोगों ने अपने चेहरे सजा लिए हैं, अपने फेक बिहेवियर्स बना लिए हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो कहते हैं मैं अनलर्न करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं सीखना चाहता. अब वो विश करता है लास्ट 2 stanzas में किस चीज़ की? What he used to be. He wants to regain all the previous, all the past memories, all the past things. Though he knows that he couldn't be that person, but he wishes to be so. ठीक है. ये एक ironically वो कहता है कि मैं वैसा बनना चाहता हूँ, गो के that is not possible for him. So क्या कहता है राइटर हमें कहता है मैं वो तमाम चीज़ें, यानी नेचुरल, कहता है मैं जैसा था, जैसे लोग नेचुरल पहले हुआ करते थे, अब उस कल्चर को मिस करता है. ठीक है. कहता है जब वेस्टर्न कल्चर आया, इसने नेटिव अफ्रीकन कल्चर को तबाह कर दिया. अब लोग मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, अब लोग फेक एक्सप्रेशंस देते हैं, लोग फेक हो चुके हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ फेक हैं, उनके फेसेस फेक हैं, उनकी एक्सप्रेशंस फेस हैं. ऑल दीज थिंग्स ही वांट टू अनलर्न. ठीक है. और क्या कहता है कि जब मैं आईने के आगे खड़ा होके अपने आप को देखता हूँ तो मेरी जो मुस्कुराहट है, ये जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, एक्सप्रेस करना, लोगों को डिसीव करना, तो कहता है जब मैं मुस्कुराता हूँ तो मेरे जो दांत हैं वो मुझे सांप के डंक की तरह लगते हैं, सांप के उन 2 दांतों की तरह लगते हैं जिनमें जहर भरा होता है. यानी अब बेटा ये आयरॉनिकली कहता है यानी लोग आपके साथ इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में मिलते हैं किस लिए? जस्ट फॉर देयर ओन गेन. ठीक है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ओन एडवांटेजेस एंड गेन्स एंड पर्पसेस. अपने फ़वाइदों के लिए, अपने मकासद के लिए, अपने गेन्स के लिए लोग आपसे मिल रहे हैं. इस वजह से अब अपनी स्माइल को किससे तशबीह दे रहा है? किसकी स्माइल से कह रहा है?
लाइक अ स्नेक्स बेयर फैंग्स, सिमिली है, ठीक है। कहते हैं मेरे दांत भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक सांप के ढसने वाले दो दांत होते हैं, यानी मेरी मुस्कुराहट भी अब नेचुरल नहीं है। आई डोंट हैव इमोशंस बिहाइंड माई दिस स्माइल बट आई जस्ट वॉन्ट टू गेट समथिंग आउट ऑफ दैट। और बेटा लास्ट स्टेंजा में क्या कहता है, इन द लास्ट स्टेंजा ही सेज show me son how to laugh, show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. In the last stanza, he becomes clear, he becomes clean, and he wants his son to show him how to regain his lost innocence. लास्ट स्टेंजा में अपने बच्चे से कहता है कि मैं किस तरह वो मासूमियत वापस पा सकता हूँ। How to laugh and smile like in the olden days when he was young and carefree, and the culture encouraged openness and honesty, a pure identity. कहते हैं मैं वो किस तरह सब कुछ पा सकता हूँ, किस तरह वही कल्चर, वही केयर फ्री बिहेवियर, उसी तरह ही बिल्कुल ओपननेस, बिल्कुल ऑनेस्टी, बिल्कुल प्योरिटी, मैं उस तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी इन माई पर्सनैलिटी, इन माई कैरेक्टर, हाउ कैन आई रीलर्न ऑल दोज, ठीक है। अब अपने बच्चे से कहते हैं मैं सारी चीज़ें कैसे वापस अपने कैरेक्टर में पा सकता हूँ। इज़ दैट क्लियर बेटा? सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेंजा बाय स्टेंजा एंड व्हाट ही टॉक्स अबाउट द थीम्स ऑफ द पोएम। बेटा थीम्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें थीम मिलता है अब आते हैं क्रिटिकल एनालिसिस पे। एक्चुअली दिस पोएम इज़ अ फ्री वर्स बेटा, ये फ्री वर्स है, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, ठीक है। रन ऑन लाइंस हैं, एक लाइन का मीनिंग जो है वो सेकंड लाइन में क्लियर हो रहा है, सेकंड का थर्ड में क्लियर हो रहा है, यानी ये फ्री वर्स है, ओके। इन दिस वंस अपॉन अ टाइम अ फ्री वर्स पोएम, एक्चुअली द पोएट फोकसेस ऑन फादर्स एटीट्यूड टू कल्चरल चेंज एंड टाइम्स पास्ट, ठीक है। इसमें हमें एक बाप की फीलिंग्स बताता है जो कि क्या कर रहा है, जो एटीट्यूड कल्चर जो चेंज हुआ है उसको फील करता है और जो माजी है उसको याद करता है, और वेस्टर्न कल्चर ने जो इफ़ेक्ट किया नेचर अफ्रीकन वे ऑफ लाइफ को उसको हाईलाइट करता है। और क्या कहता है इस पोइम में, एक शख्स एज अ फादर प्रेज्यूमेबली लाइक अ फादर एड्रेस करते हैं अपने सन को, एडवाइस करता है, बताता है अपने बेटे को कि किस तरह नॉस्टैल्जिक मैनर में, हमें इसकी टोन कैसी लगती है, नॉस्टैल्जिक लगती है, वो माजी के बारे में बात करता है, माजी और हाल को कंपेयर करता है आपस में, और अपने बेटे को बताता है कि किस तरह चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं वक्त के साथ साथ, लोग किस तरह जेन्युइन हुआ करते थे पहले और किस तरह लोग यानी ये चीज़ें लोगों ने सीखी हैं, वो एक्चुअली वो पास्ट वर्ल्ड रिस्टोर करना चाहता है, ठीक है। कहता है पहले लोग आपसे मिलते थे तो वो उनकी स्माइल जो रियल होती थी, उनके पीछे कोई मकसद नहीं होता था, वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं देखते थे, लेकिन जैसे जैसे पोएम आगे की बढ़ती है तो हमें स्टेंजास बताते हैं कि different elements that he has narrated, that he has just copied, it tells us that how people have changed, how values have changed, how the things have changed. अच्छा, the themes that we can find vividly in this poem are how society changes, ठीक है, वो ये थीम देता है कि how the society has changed, ठीक है, how cultural shift has occurred in this time span and how values change due to the capitalism। इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में मादा प्रस्ती की वजह से किस तरह लोगों की अखलाकियात, लोगों की कदरें चेंज हो गई हैं, लोगों के गोल्स एंड डेस्टिनेशंस चेंज हो गए हैं, हाउ द पीपल दे हैव चेंज देयर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है बेटा। अच्छा, लेकिन अब अगर हम जाएं इसमें अपना figurative devices में, which figurative devices has been used in this poem, तो बेटा in the first stanza once upon a time, ठीक है, ये इसकी रिपीटिशन हमें मिलती है once upon a time फर्स्ट में और लास्ट में। इस लाइन को कैसी लाइन कहते हैं? अच्छा, एक तो हमारे पास इस लाइन की रिपीटिशन है, देन बेटा सेकंड लाइन में दे यूज टू लाफ विद देयर हर्ट्स, इट्स द एग्जांपल ऑफ मेटाफर, ठीक है, क्योंकि मुस्कुराहट चेहरे की होती है, दिल की नहीं होती, लेकिन वो दिल की कह रहा है, इट मीन्स ही इज डायरेक्टली मेकिंग कंपैरिजन ऑफ स्माइल विद हर्ट, ओके। अच्छा, सो व्हाट ही सेज नेक्स्ट, लेट्स कम टू द
फिफ्थ लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा दैट इज़ आइस ब्लॉक कोल्ड आइज, ये भी एक मेटाफर की एग्जांपल है, ठीक है। देन बेटा अगर हम जाएं, देयर वाज अ टाइम इंडीड, सेकंड स्टैंजा की सेकंड लाइन में चले जाएं, दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हर्ट्स, ये एलिट्रेशन है, हैंड्स एंड हर्ट्स, हा हा साउंड की रिपीटिशन है, ठीक है, एलिट्रेशन। सो बेटा नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आती है ये लास्ट स्टैंजा में अगर आप चले जाएं, सो शो मी सन, सा साउंड की रिपीटिशन है, ठीक है, ये भी एलिट्रेशन है, व्हेन आई वाज, ठीक है। अगर हम जाएं सेकंड स्टैंजा की थर्ड लाइन में, व्हेन आई वाज, वाह साउंड की रिपीटिशन है। ये सारी हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं एलिट्रेशन की। अब आते हैं एजोनेंस की। एजोनेंस में अगर हम जाएं तो हमारे पास एग्जांपल बनती है लाइक ए फिक्स पोर्ट्रेट स्माइल, एलिट्रेशन में ही एजोनेंस है बेटा, कॉन्सोनेंस एजोनेंस है। मेटाफर की एग्जांपल्स आपने देख ली। नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारे पास जो एग्जांपल बनती है सिमिली की। अगर आप देखें पहले मेटाफर को लेते हैं, फर्स्ट स्टैंजा की सेकंड लाइन, फर्स्ट स्टैंजा की फिफ्थ लाइन में आइस कोल्ड, आइस ब्लॉक कोल्ड आइस, लॉफ विद देयर हर्ट्स एंड हर्ट्स विद देयर हर्ट्स। अच्छा, सेकंड स्टैंजा की फोर्थ लाइन में दे शेक हैंड्स विदाउट हर्ट्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटाफर। ये मेटाफर की एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं। अगर हम नेक्स्ट इसको देखें तो हमारे पास एग्जांपल बनती है सिमिली की। सिमिली कहाँ पे बनती है, आई हैव लर्न टू वियर मैनी फेसेस लाइक ड्रेसेस। ये आप अगर जाएं फोर्थ स्टैंजा की सेकंड लाइन, आई हैव लर्न टू वियर मैनी फेसेस लाइक ड्रेसेस, लाइक का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कहते हैं मैंने भी ड्रेसेस की तरह नए नए फेसेस अपने ऊपर धारना सीख लिए हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सिमिली। अच्छा, कन्फर्मिंग स्माइल, विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल लाइक अ फिक्स पोर्ट्रेट, इसी से ही नेक्स्ट टू लाइंस दीजिए हैं, लास्ट टू लाइंस में फोर्थ स्टैंजा की, विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स लाइक अ फिक्स पोर्ट्रेट स्माइल। ये भी एग्जांपल है किसकी, सिमिली की एग्जांपल हमारे पास बनती है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद बेटा आते हैं टोन पे। व्हाट इज़ टोन ऑफ द पोएम? एक्चुअली दिस पोएम इज़ नैरेटिव इन स्ट्रक्चर, ये कहानी बताती है, नैरेटिव है ये एक, ठीक है, नैरेटिव पोएम है। क्यों? कि इसमें हमें कहानी बताता है। अब बेटा अगर हम टोन की बात करें तो टोन ऑफ द पोएम इज़ नॉस्टैल्जिक एंड लिटिल आयरॉनिक। नॉस्टैल्जिक है क्योंकि राइटर जो है वो माजी को भूल नहीं पाता, राइटर जो है वो माजी के बारे में बातें करता है, माजी को याद करता है और कंपैरिजन ड्रॉ करता है माजी में और मुस्तकबिल में। अच्छा, ही डियरली विशेस टू रीलर्न हाउ टू स्माइल ए जेन्युइन स्माइल अगेन। वो दोबारा वो मुस्कुराहट हासिल करना चाहता है जो जेन्युइन थी, जो प्योर थी। और बेटा वो अपना वो बचपना, वो अपना वो जवानी का वक्त दोबारा अगेन रीलर्न करना चाहता है। ही क्लियरली वॉन्ट्स टू गेट बैक टू अ टाइम ही परसीव्स एज प्योर एंड इनोसेंट एंड गुड। वो उसी वक्त में वापस जाना चाहता है जिसको वो कहता है कि ये कैसा वक्त था, प्योर था, इनोसेंट था और अच्छा वक्त था। In the old African culture, he wants to get back to the old African culture before the Western values crept and took over. कहता है वो उस कल्चर में जाना चाहता है जब वेस्टर्न वैल्यूज जो थी उन्होंने टेक ओवर नहीं किया था अफ्रीकन नेटिव कल्चर में। बेटा होपफुली यू माइट हैव गॉट all the things, all the ideas that I have tried to just convey to you. If you have any problem, if you have any confusion, you may ask me in the comments. और माइंड में रख लें इसमें सस्टेट्स यूज़ किए गए हैं, डिफरेंट टेक्निक, वर्सिफिकेशन की डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए गए हैं। यू हैव टू डू इट बाय योर ओन, ठीक है। सिर्फ वर्सिफिकेशन आप तक छोड़ रहा हूँ, आपने वर्सिफिकेशन इसकी देख लेनी है। एंड यू हैव गॉट अ नोट, गो थ्रू इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल बी देयर टू असिस्ट यू। आपकी नेक्स्ट जो बेटा ई असेसमेंट आएगी वो पोएम की है, ठीक है। फोर्थ यूनिट की जो हमारी पोएम है
वो है जी इट कुडंट बी डन। इसकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी और पैराफ्रेज भी, ये दोनों आपकी होम असाइनमेंट्स होंगी और माइंड में रखिएगा, इसी से ही आपकी ई असेसमेंट भी बनेगी। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड रिवाइज द लेक्चर। टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।